Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are doing well and fine at your home. So as you all know that we were discussing about unit number 1, that is all about networks and communication. So today we are going to revise first of all the previous lesson and then we will start the new one. So let me tell you one thing, that today we are going to discuss this topic from book, because there are some pictures which I want to show you and which I want to explain you. So can anyone tell me what do you understand by the word network? What is a network? Shuja, can you tell me? Right. What is basically network? Network is basically when two or more computers are linked together, they form a network. जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कंबाइन होंगे देन दे विल फॉर्म अ नेटवर्क. एंड व्हाट दे विल डू, जब हम एक नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे तो उस नेटवर्क का बेसिकली फ़ायदा क्या होगा, क्या इस्तेमाल है उस नेटवर्क का? हसान, कैन यू टेल मी? Yes, what they can do any kind of communication. For example, as you can see, when we will make a group of between 2 or more than 2 students, then what they will do, they will share their information, their thoughts, their papers, etc. So similarly, when we will form a network, when 2 or more computers will be combined, then what will happen, they can share each kind of information, they can share their devices, they can share their information. Is it clear? Okay, so today what we are going to do, we are going to see the next topic, that is types of physical transmission media. What is the name of the topic? Mohit, can you repeat? Types of physical transmission media. Now what do you mean by transmission? Transmission का मतलब क्या है? Myra, can you tell me what do you understand by the word transmission? Right, transmission बेसिकली वो पाथ होता है जिसके थ्रू आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है. That is known as transmission. That process is known as your transmission. Now as you all know कि जब हमने किसी को मैसेज सेंड करना होता है, if we want to send a message, then what we will do, we will just simply. Now what will happen basically, जब हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर मैसेज सेंड कर दिया तो उससे होगा क्या, हमने देखना है कि सेंटर में जो पाथ यूज़ हो रहा है उस पाथ को हमने डिस्कस करना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस जगह कंप्यूटर है और एक इस जगह कंप्यूटर है, तो अब इन कंप्यूटर्स के दरमियान मैसेज को सेंड करने के लिए, या अगर हमारे पास मॉडेम भी है तो उसके थ्रू बेसिकली हमने देखना है कि हम कौन सा पाथ यूज़ करेंगे. एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन. या तो हमारे पास क्या होगा, थ्रू केबल ट्रांसमिशन होगी, या हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन होगी. इज़ इट क्लियर? या तो हम केबल्स के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे या हम वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करेंगे. तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ फिजिकल. फिजिकल का मतलब है दैट मीन्स कि आपके पास कोई मीडियम हो. इज़ इट क्लियर? मीडियम हो मतलब किसी न किस्म की कोई केबल हो. सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास केबल्स की कितनी टाइप्स हैं. Is it clear? So basically we have, how many have types of physical transmission media? Amna, can you tell me? Right, we have basically here 3 types of physical transmission media. और ये जो physical transmission media इसका दूसरा नेम है guided media. What is the name? गाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया अब हम इसे क्यों कह रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पर आपका टॉपिक है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया एंड व्हाई वी आर सेइंग इट एज गाइडेड मीडिया. दुआ, कैन यू टेल मी?
राइट, वी आर कॉलिंग इट एज अ गाइडेड मीडिया बिकॉज हम एक तरह से अपने पाथ को गाइड कर रहे हैं कि आपने इस इंस्ट्रक्शंस के साथ मूव करना है, इस वे में मूव करना है. सो दिस इज नोन एज योर गाइडेड मीडिया. इज इट क्लियर? ओके, सो दुआ, कैन यू टेल मी कि वो जो 3 टाइप्स हैं हमारे पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की, उनके नेम क्या हैं? Yes, exactly right. We have basically 3 types of physical transmission media or guided media. The first one is known as twisted pair cable, coaxial cable and fiber optics cable. Is it clear? So basically इसमें हम स्टडी करेंगे केबल्स की कितनी टाइप्स हैं और हम कौन सी केबल बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. So first of all we have twisted pair cable. We have twisted pair cable. First of all let me show you the picture of twisted pair cable. Okay, these are both basically known as twisted pair cable. ये जो केबल्स हैं आपकी, इनका क्या नेम है? ट्विस्टेड पेयर केबल. कैन एनीवन टेल मी कि इसमें इसका नेम ट्विस्टेड क्यों रखा है, किस वजह से? राइट, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपकी जो केबल्स हैं उसको ट्विस्ट दे दिया जाता है और उसको रोल कर दिया जाता है. इज इट क्लियर? तो इसमें जो कॉपर्स की वायर हैं उसको ट्विस्ट दे दिया जाता है. और ये जो केबल्स हैं ये मोस्टली हम किस जगह पर यूज़ करते हैं? बशीना, कैन यू टेल मी? राइट, ये केबल्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी जगह पर कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना है. ठीक है, सो दे आर स्पेशली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क. जब हमने लोकली कोई नेटवर्क क्रिएट करना हो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लैन, सो सिंपली वी विल यूज़ दिस काइंड ऑफ केबल्स. इज़ इट क्लियर? सो बेसिकली इसमें आप देखें यहाँ पर आपको ट्विस्ट नज़र आ रहे हैं इनकी केबल्स में. सो एक तरह से इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है इन केबल्स को और देन इसको पैक कर दिया जाता है. तो ये इस वजह से इसका नेम है ट्विस्टेड पेयर केबल. इज इट क्लियर? ओके, सो आफ्टर दैट कैन एनीवन टेल मी कि यहाँ पर इसका नेम है अनशील्डेड और ये है शील्डेड. तो हमारे पास जो केबल्स हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं ट्विस्टेड पेयर में. एक होती है अनशील्डेड और दूसरी है शील्डेड. तो यहाँ पर अगर आप फोकस करें अनशील्डेड, तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की कॉपर की कोई वायर नज़र नहीं आएगी. कैन यू सी इट? वाइट कलर की? नो, बट यहाँ पर आपको सिंपली कॉपर की वायर नज़र आ रही है वाइट कलर की, जिसके थ्रू उसको इनरोल किया हुआ है. सो दीज आर नोन एज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और ये आपका सिंपली है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. आफ्टर दैट वी हैव कोक्सल केबल. As you can see on the screen, Fatma, can you tell me what is the use of this cable? ये केबल आपने कभी घर में यूज़ की हो? Have you ever seen this kind of cable? राइट, ये बेसिकली आपके पास इसका नेम है कोक्सल केबल. अब ये कोक्सल केबल क्या होती है? बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ वायर. एक तरह से एक वायर होती है और जो दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर. सो दिस काइंड ऑफ वायर इज़ बेसिकली यूज्ड इन द टेलीविजन इंडस्ट्री. तो मोस्टली जो ये केबल यूज़ होती है वो टेलीविजन इंडस्ट्री में यूज़ होती है, या इसके अलावा अगर आपने किसी जगह पर नेटवर्क बिल्ड करना है, कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ड करना है, देन वी विल यूज़ दीज काइंड ऑफ wires which are known as your coaxial cable. So have you ever seen कि अगर आपके घर में टीवी है, LCD है, तो उसके बैक पर आपने इस किस्म की केबल देखी होगी, कभी आपने नोट किया? सो दैट वायर इज़ नोन एज योर कोक्सल केबल. इज इट क्लियर? सो इसके थ्रू बेसिकली हम डाटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं
और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द थर्ड टाइप ऑफ cable, that is known as your fiber optic cable. This is known as your fiber optic cable. Have you ever seen this kind of cable? Fiber optic cable. So fiber optic cable basically एक तरह से ग्लास की तरह होती है। So ये आपके पास बेसिकली है फाइबर ऑप्टिक केबल। और फाइबर ऑप्टिक केबल किस जगह पर यूज़ होती है? फॉर एग्जांपल टेलीफोन इंडस्ट्री में। इसके अलावा अगर आपने किसी किस्म की लाइटिंग करनी है, डेकोरेशंस करनी है, तो आप उस जगह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा केबल टेलीविज़न में, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सर्जरी, इन सब चीज़ों में ये फाइबर ऑप्टिक केबल ईजिली यूज़ होती है। इज़ इट क्लियर? सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें हमने पढ़ा है हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। इज़ इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जस्ट रिवाइज दिस टॉपिक। आपने इस टॉपिक को रिवाइज करना है और इसी के साथ इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी केबल का यूज़ किया है। इसके अलावा मैं स्क्रीन पर इन केबल से रिलेटेड कुछ और पिक्चर्स शो कर दूंगी, सो दैट दिस टॉपिक विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? फाइन। सो नाउ द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज? Mohib, can you tell me? राइट, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली वो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि हमारे पास सबसे लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हों। आजकल के दौर में अगर हमारे पास सबसे लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हों, दे आर नोन एज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। इज़ इट क्लियर? सो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ आपके पास जो बहुत ही एडवांस और हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे आर नोन एज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द 4 पॉइंट्स इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में हम 4 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारे पास 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि मोस्टली और बड़े पैमाने पर यूज़ होती हैं। इज़ इट क्लियर? Alina, can you tell me what do you understand by the word cutting edge technologies? राइट, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसके थ्रू बेसिकली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दे आर नोन एज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। तो जितनी भी एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिंपली उसको नेम दिया गया है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेलुलर कम्युनिकेशन। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सेलुलर कम्युनिकेशन? राइट, okay, so we were studying about cellular communication. So have you ever heard the word of cellular communication? Shaman, can you tell me? राइट, सेलुलर कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है? वो कम्युनिकेशन जो अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, जो आप अपनी कम्युनिकेशन मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सेलुलर कम्युनिकेशन। और इसमें होता क्या है बेसिकली? एज यू कैन सी इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आ लैंड्स कॉल्ड सेल। इसमें होता क्या है कि आपकी जो लैंड होती है उसको सेल की फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक तरह से मैक्सिमम एक एरिया में एक टावर क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये टावर पीछे से बेसिकली कनेक्टेड होता है जो आपके पास मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। सो दिस टावर इज़ कनेक्टेड विद द मोबाइल स्विचिंग सेंटर। सो इसी तरह से आपका जो मोबाइल है वो एक्सेस करता है जो नियरेस्ट जिस टावर के सिग्नल आ रहे हो।
इज इट क्लियर? सो एज यू कैन सी कि एक आपके पास मोबाइल फ़ोन ये है और एक ये है। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो जो नियरेस्ट टावर है, जो नियरेस्ट टावर से हम सिग्नल्स कलेक्ट कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो जाता है। सो इस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है? सेलुलर कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेसन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन? ये किस किस्म की कम्युनिकेशन है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन है? शबान, कैन यू टेल मी? राइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप वायर्स को इस्तेमाल नहीं करते हो और वायरलेस अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। इज़ इट क्लियर? तो इस वक्त आपको स्क्रीन पर ये जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, दे आर नोन एज सैटेलाइट्स। दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सैटेलाइट्स। और हर सैटेलाइट का डिफरेंट पर्पज़ है। कुछ सैटेलाइट्स का यूज़ क्या है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है आपकी लैंड के बारे में। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो कि आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं लोकेशन से रिलेटेड। जैसे ही किसी पर्सन की लोकेशन चेंज होती है तो फ़ौरन डाटा अपडेट हो जाता है। सो सैटेलाइट एक तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसमें होता क्या है कि आप इजीली किसी भी जगह पर रहकर चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। एक तरह से रिमोट एरियाज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट एरियाज़ क्या होते हैं? कम्युनिकेशन टू द रिमोट एरियाज़ ऑफ अर्थ। वो एरियाज़ जो आपकी एक्सेस में नहीं है, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? Ahmed, can you tell me? Haris, right? So GPS is basically stands for Global Positioning System। और इस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आपकी लोकेशन जो एक्चुअल लोकेशन है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज GPS। GPS बेसिकली आजकल आपकी गाड़ियों में, मोबाइल्स में ईजिली इंस्टॉल होता है। तो इससे होता है क्या कि आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर हो, आपका मोबाइल किसी भी जगह पर हो, तो हम उस मोबाइल की इजीली लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो हम उस मोबाइल की इजीली लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ GPS। GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो यहाँ पर आप अगर देखें, सो GPS इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस, साइंटिस्ट, क्लिम्बर्स, हाइकर्स और एनीवन who wants to accurate location and time information. So simply they will use GPS. So after that we have the last topic in the end, that is known as Bluetooth. So what do you understand by the word Bluetooth? ब्लूटूथ क्या है? सो आई होप ब्लूटूथ सब ने यूज़ की होगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्लूटूथ? मिकाल, कैन यू टेल मी? राइट, ब्लूटूथ इज़ बेसिकली नोन एज वायरलेस टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वायरलेस है। वायरलेस दैट इज़ सिग्नल्स, और सिग्नल्स की मदद से हम इसको यूज़ करेंगे। और ब्लूटूथ का काम क्या है कि ईजिली हम इसके थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर, फ्रॉम वन मोबाइल टू एन अदर। इसके अलावा आजकल आपके पास कई तरह से ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें ब्लूटूथ इंस्टॉल होती है। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, कुछ माउस और कीबोर्ड वायरलेस होते हैं जिसको हम सिंपली ब्लूटूथ की मदद से यूज़ कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? सो बेसिकली ब्लूटूथ हम फाइल शेयरिंग के लिए ईजिली यूज़ करते हैं। अगर आपने अपनी डाटा को ट्रांसफ़र करना है सो सिंपली वी विल यूज़ ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ आजकल हर किस्म के मोबाइल में इंस्टॉल होती है। ऐसे मोबाइल जिसमें इंटरनेट की ऑप्शन नहीं होती उसमें भी आपको ब्लूटूथ की ऑप्शन मिलेगी।
सो ये एक तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे रहकर अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने मोबाइल से दूर होंगे या डिवाइस को दूर कर देंगे तो सिंपली आपकी जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? सो सिंपली जस्ट रिवाइज दिस टॉपिक। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज करना है एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप और इन गूगल क्लासरूम।